کے بعد کیا ہوا؟ آپ اس طرف بھی تھوڑا روشنی ڈالیں، وہ آباد وہاں پر کب تھے اور کب وہاں سے ان کو نکالا گیا یا پھر کب وہ وہاں سے نکل گئے؟ جی ذرا اس جانب بھی آپ روشنی ڈالیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ 40 سال تک وہ بھٹکے ہیں. جی. تو جب 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ پوش ہو گئے تھے اس وقت. تو اس کے بعد ان کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حساب سے ان کے بائبل کے حوالہ میں دے رہا ہوں. تو اور ایک پیغمبر جس کا نام تھا جوشوا، تو جوشوا کے زمانے میں یہ لوگ آج کا موجودہ جو اسرائیل ہے وہاں پر وہ لوگ حملہ ور ہوئے. اور یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جو مغربی ممالک ہے اور دنیا تک جہاں پر بھی ہے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا تلوار کے زور پر ہے نا دین پھیلائے. اب یہاں ان کی بائبل آپ دیکھیے، ان کے جو اسٹارٹنگ کی جو 4 کتابیں ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبر اور ڈیوٹرونومی جو آخری کتاب ہے، اگر آپ اس میں جائزہ لیں گے تو یہ لوگ جو اسرائیل جو لیے ہیں جبرن لیے ہیں. اور ہم مسلمان کو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے خود جبرن لیے ہے. ان کی اگر آپ بائبل آپ پڑھیں گے ایکسوڈس میں، تو جب یہ لوگ حملہ ہوئے تو ایک دن میں 30 راجاؤں کو کنعان کے جو موجودہ اسرائیل ہے ان کو قتل کیا گیا. تب جا کے یہ لوگ جبرن جو ہے نا بیت المقدس پر یہ ہوئے، قبضہ ور ہوئے، تو قابض ہوئے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا تلوار کے زور پر پھیلا ہے. ان کی بائبل کا حوالہ دے رہا ہوں میں، کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، ریفرنس ہے، ان کی کتابیں پڑھی جائے. 30 سال تک 30 راجاؤں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا. اور اسلام کا جو ہے یہ الگ الگ ڈھنگ سے پیش کر رہے ہیں آج کے دور میں. تو جب جوشوا کے دور میں یہ لوگ جب اسرائیل پہنچے کے بعد ان کے 12 قبیلے ہوئے. 12 قبیلے ہیں. حضرتنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو فرزند ہیں یعقوب علیہ السلام سے 12 اولاد ہیں. ان 12 اولادوں میں سے ایک کا نام تھا اسرائیل، جسے ان کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ جوڈا کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں جوڈائزم. جو یہودیوں کو جو فالو کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہندی میں جوڈائزم. تو ان کے نام سے اسرائیل، 12 میں سے ایک تھے، ان کا بیٹے، ان کا نام تھا اسرائیل. تو اس نام سے لوگ رکھتے ہیں. تو بات یہ ہوا کہ جب وہ لوگ قابض ہو گئے فلسطین میں، موجودہ فلسطین میں، قتل عام کر یہ لوگ لیے ہیں. اور دوسروں کو دوسرے مذہب کو کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر، بالخصوص اسلام کو کہتے ہیں. تو جب یہ لوگ قابض ہوئے وہاں پر تو 12 الگ الگ قبیلے بنے. جیسے ہی جوشوا ان کے جو پیغمبر تھے جب ان کی بھی وفات ہوئی تو یہ پھر لوگ بت پرستی شروع کر دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات تھے پھر یہ لوگ ان کی خلاف ورزی کرتے گئے. پھر وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہی رہا. تو جو ان کا بیت المقدس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے یہودیوں کے نقطۂ نظر سے، تو ان کے 2 ایکسوڈس ہوئے ہیں. مطلب 2 ٹائم وہ لوگ بیت المقدس کو چھوڑنا پڑا. ایک تھا سن 580 قبل عیسیٰ مسیح سے 580 سال پہلے. وہ دور میں یہ لوگ مشرک ہو چکے تھے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھے تھے یہ لوگ. اور آپ اب کہتے ہیں کہ وی آر دا چوزن پیپل، گاڈ چوزن پیپل. یہ کہاں سے گاڈ چوزن پیپل ہوئے؟ عوام کے چہیتے بندے. کیسا خدا کے چہیتے کہاں سے ہوئے؟ جب تم خدا کی شریعت اور خدا کو تم جھٹلائے. تو جب ان کی نافرمانیاں اور ان کی بدکاریاں زیادہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 580 قبل عیسیٰ مسیح میں اپنا عذاب نازل فرمایا ان لوگوں پر. اور یہ دور تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا. عرفان صاحب، تو جو بیبیلون کا راجہ تھا جس کا نام تھا نیبوکڈنیزر، یہ بیبیلون کا راجہ تھا عرفان صاحب. تو اس نے بیت المقدس جو موجودہ اسرائیل ہے وہاں پر وہ حملہ ور ہونے کے بعد بیت المقدس کو زیر زمین کر دیا، بالکل تہس نہس کر دیا. کوئی نشانی باقی نہیں رکھا اس میں. اور جتنے یہودی تھے ان کو بندی بنا کر موجودہ جو عراق ہے وہاں پر لے کر گئے. اس میں دانیال علیہ السلام بھی رہے. بعد میں چل کر وہ خود اسلام قبول کرا. اس میں بڑی پیشن ہوئی ہے. پرانی جو ان کی کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں ایک کتاب ہے ڈینیل، بک آف ڈینیل، کتاب دانیال علیہ السلام کی کتاب. اس میں پورا ایک بڑا واقعہ ہے کہ وہ لوگ جو راجہ تھا کیسا شیروں کے آگے دانیال علیہ السلام کو ڈال دیا تھا، پھر اسلام کیسا قبول کرا. خیر ہمارے یہ بحث کا موضوع نہیں ہے. تو کمپلیٹلی بیت المقدس کو زار کر نیبوکڈنیزر پورے یہودی قوم کو عراق کو لے کر بندی بنا کر لے کر گئے. یہ ان کا پہلا ایکسوڈس رہا کہ بیت المقدس پورا ختم ہو چکی تھی.
फिर अल्लाह तबारक व तआला बाज़ वहाँ के जो मुसलमान थे उस ज़माने के मुसलमान यहूदी जो थे मुसलमान ही थे, जो एक आध जो थे मजहब को मानने वाले थे, तौबा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर कर दुआ की। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम भी दुआ फरमाए। उसके बाद क्या हो गया कि जो फारसी राजा था, फारसी पर्शियन जो राजा था उसका नाम था साइरस। साइरस ने क्या किया, नेबूकदनेस्सर पर हमला किया। वो भी एक अलग तारीख, बहुत ही दिलचस्प तारीख है, बाइबल के थ्रू मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो नेबूकदनेस्सर का परपोतरा था, जब नेबूकदनेस्सर मर गया, उसके मरने के 23 साल के बाद उसका परपोतरा जो है राजा बना, और वो बड़ा यश किस्म का था। तो जब बैतुल मुक़द्दस को जब उसका जो दादा था, जब जार कर कर पूरा तहस नहस कर कर जब आ रहा था, तो जो मस्जिद थी, टेम्पल ऑफ सुलेमान जिसे कहते हैं लोग, जो आज का इनका दावा है कि जो मस्जिद अक्सा है, दरअसल उसी पर जो है ना टेम्पल ऑफ सुलेमान है। तो वहाँ से जो राजा क्या किया, वो तोड़ने के बाद सारे अंबिया इकराम की निशानियों को लेकर वहाँ पर चले गए। तो उसका जो परपोतरा था इरफान साहब, वो अपने हद से बाज नहीं आया और ही क्रॉस हिज लिमिट्स। तो उसने क्या किया कि अपने गुलामों को बुलाकर कहा कि मैं जो पैगंबर जो उनकी जो चीज़ें थे, जैसे कि उनका कूज़ा था, उनके जो गिलास थे, तो उसमें वो बदबख्त है ना शराब डालकर पीना चालू करा था। पैगंबरों की जो चीज़ें थी उस पर शराब डालकर पीना चालू करा। तब अल्लाह का अज़ाब आया साइरस के थ्रू। साइरस आया, जो बेबीलोन जो बड़ा उस ज़माने का सुपर पावर था, तो उसको जार कर कर रेजा कर कर उसका नामो निशान मिटाकर चला गया और यहूदियों को कहा कि तुम्हारी अगर मर्जी है तो तुम यहाँ पर रहो, या तो अपने वापस इज़राइल को चले जाओ। हाल ये रहा कि यहूदियों को अपना मुक़द्दस जगह तक पता नहीं चली। उनकी बाइबल में बता रहा हूँ मैं आपको, बुक ऑफ डेनियल में ये लोग कहते हैं कि हमारा जो मुक़द्दस जगह है वो हमें अब याद नहीं। तो एक आध जो लोग बाकी थे, वो लोग वापस जाकर है ना फिर से टेम्पल ऑफ सुलेमान बनाए। ये उनका पहला एक्सोडस रहा। उसके बाद क्या हुआ, वक्तन फ़क्तन फिर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करते गए, पैगंबरों को मारते गए। जैसे कि हज़रतना ज़िक्र अलैहिस्सलाम जिस कहते हैं, उनको ज़करिया, इनको फिर उनको मारा गया, उनका कत्ल कर दिया गया। फिर उनके जो बेटे थे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जिसे वो लोग कहते हैं कि जॉन द बैप्टाइस्ट, उनको भी कत्ल कर दिया गया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की कोशिश में रहे लोग, मगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में कहता है कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर सके। कुरान की एक आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि वमा क़तलहु वमा सल्लबहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तिलाफुन फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्म इल्ला तिबादन वमा क़तलहु यक़ीनन। ये कुरान की आयत है जिस पर अल्लाह ताला कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना ही वमा क़तलहु वमा सल्लबहु, ना ही उनको कत्ल कर दिया गया, ना उनको सलीब पर चढ़ाया गया। ये हम हर मुसलमान इस आयत पर, हर कुरान के हर एक लफ्ज़ पर हम कहते हैं कि आमना सदक़ना। तो ये लोग जब ईसा अलैहिस्सलाम को जब ये लोग कत्ल करना चाह रहे थे इरफान साहब, अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। उसके बाद ये लोग क्या करे कि जो रोमन जो थे उस ज़माने में, रोमन उन पर काबिज़ थे, उनकी हुकूमत थी रोमन अम्पायर की। तो ये लोग क्या करे, ईसा अलैहिस्सलाम को जब मारने की कोशिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर अज़ाब आया उनके ऊपर। सन 70 AD, ईसा मसीह 70 ईस्वी में अल्लाह तबारक व तआला रोमन के हाथों उनको फिर जलील करा। रोमन फिर से यहूदी का जो मुक़द्दस जो जगह थी, टेम्पल ऑफ सुलेमान जिसे कहते हैं, उसने फिर तोड़ा उसको, और सारे बनी इज़राइल के पूरा शहर को तोड़ दिया, नेस्तो नाबूद कर कर। ये पूरे यहूदियों को फिर क्या किया, फिर बंदी बनाया, स्लेव बनाया, गुलाम बनाकर सारे यूरोप में उनको भेजा गया। एक यहूदी नहीं ठहरा गया उस टाइम रोमन अम्पायर में, सारे के सारे उन लोगों को यूरोप में भेज दिया गया, सारे के सारे। अब आप मुझे फिर बताइए कि अगर गॉड चूजन पीपल है तो ये अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर अज़ाब कैसा आया? तुम 3000 साल की तारीख में 2000 साल तुम तो बाहर है इज़राइल के, फिर तुम्हारा मुक़द्दस कैसा हुआ किताब है, तो मुक़द्दस तुम्हारी जगह कैसा हुई है? बनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो आल है, जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, हमारा हक़ है और अरबों का हक़ है इसमें। तो जिशान साहब, आपने बताया कि यहूदियों को 2 मरतबा उस पाक सरजमीन से निकाला गया, जिसे उस ज़माने में कनान कहा जाता था, आज फ़लस्तीन या इसराइल कहा जाता है। तो 2 मरतबा वहाँ से बाहर निकाला गया। फिर दूसरी मरतबा जब उनको निकाला गया तो यूरोप के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उन्हें ग़ुलाम बनाकर भेजा गया।
फिर वो वहाँ से वापस कैसे आए इसराइल और कब आए, और मौजूदा जो सूरत हाल है इसराइल और फ़लस्तीन की, उस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? जी, ये सन आज से 2000 साल पहले की तारीख है। मैंने आपसे जो वाक़या आपसे बयान मैंने किया है कि जब रोमन जो अम्पायर थे, ये गुलाम बना कर सारे यूरोपन को बेचा गया। उसके बाद ये लोग जो रोमन्स थे क्रिश्चियनिटी को कबूल करे, और 300 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान में जब उठा लिया गया तो 300 साल के बाद बाइबल बनाएंगे। और ये जो वक्फ़ा है, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उठाया गया और वो जो 300 साल के बाद जो किताब इंजील बनी उनके हिसाब से, तो उस दौरान के जो लोग थे वो वाक़ई मुसलमान थे जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ नाइसिया। ये काउंसिल ऑफ नाइसिया में ये लोग ये सोचे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इससे पहले खुद ईसाइयों में जो है उनके जो पादरी थे, ये लोग कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के एक नबी है। काउंसिल ऑफ नाइसिया रही तो उसमें तकरीबन 500 पादरियों को बुलाया गया तमाम तर दुनिया से, अलेक्जेंड्रिया मिस्र से, शाम से, मौजूदा तुर्की से, ग्रीस, रोम, यहाँ से तमाम तर पादरियों को बुलाया गया। तब भी जाके बाइबल शक्ल बनी, किताब इंजील जो कहते हैं। बिलखुसूस ये जो किताब इंजील नहीं है, क्योंकि ये जो है इसको कहते हैं, इंजील के मायने होते हैं गुड न्यूज़, खुशखबरी, इसके मायने होते हैं इब्री ज़बान में, इब्रानी ज़बान में, यहूदियों की ज़बान में, जिसे अरबी में कहते हैं इंजील, गुड न्यूज़। ये जो इंजील है गुड न्यूज़, अगर आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो ये इंजील मैथ्यू है, इंजील मार्कस है, इंजील यूहन्ना है, इंजील लूकस है। ये इंजील ईसा कहाँ पर भी नहीं है। तो हम अगर ये बाइबल की इंजील कहते हैं तो मेरे हिसाब से लगता है कि हमको कहना ये नहीं होगा, दुरुस्त नहीं है। तो क्योंकि इंजील ईसा अलैहिस्सलाम इसमें ही नहीं है, इंजील मैथ्यू है, इंजील मार्कस है, इंजील लूकस है, इंजील माथू है, जॉन है और पीटर है और दूसरे और दीगर उनके जो सहाबा किराम थे 12 जो थे, इनके जिक्र है। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम खुद बाइबल में नहीं है। तो बाहर का हमारा मौजू ये नहीं है। तो जब काउंसिल ऑफ नेसिया बना तो 500 बड़े पादरियों को बुलाया गया, तो ये लोग कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा है, खुदा का बेटा है। तो ये जब काउंसिल ऑफ नेसिया जब हुई तो ये लोग ये बात पर आमदा हो गए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जिस पर कुरान मजीद की एक आयत है, सूरह निसा की आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला कह रहा है कि लक़द कफ़रल्लज़ी क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीहु ईसा इब्न मरियम व क़ालल मसीह या बनी इसराइल उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम इन्नहु मयुशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह वमा वहुन नार वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार। ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने बनी इसराइल से कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और को तुम मत पूछो और अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक मत करो। कुरान की आयत है जिस पर हर मुसलमान का ईमान है। तो ये जब ईसा अलैहिस्सलाम को जब ये मान लिए तो इनमें एक रिवाज चालू हो गई कि जो असल जो यहूदी है ये ईसा अलैहिस्सलाम के खातिल है। ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस है, जो नसरानी हैं, इनका अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है हमारे गुनाहों के लिए आप शहीद हुए हैं, उनको सलीब पर चढ़ाया गया है, ताकि जो ये है इंग्लिश में कहते हैं इनके बाइबल में जो इनका वर्ड है रिडम्पशन, साल्वेशन कहते हैं लोग। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सलीब हुए, मसलूब हुए सलीब पर, इनका मेन पिलर है ईमान का। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है हमारे तमाम तर दुनिया वालों की गुनाहों के वजह से जो है अपने आप को जान भाग अपनी करें, ताकि हमारी कुर्बानी दिए, ताकि हमारी नजात हो सके। तो बिल्कुल जो गलत है, क्योंकि मैं कुरान की आयत पढ़ा हूँ, अमा क़तल हो अमा सल्लबू, ना ही उनको मसलूब किया गया ना उनको कत्ल कर दिया गया। तब ये लोग सोचे हैं कि ये यहूद जो थे दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं। तो उनको और नफरत होती लगी, क्योंकि ये अपने अल्लाह के बेटे को माज़अल्लाह ये समझते हैं कि ये लोग मारे इनको। तो इस वजह से इनके दोनों में दुश्मनी रही।